सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वेरिएबल्स कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड। एनी लेटर और अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल. We also know that variables are used to express relations between two quantities. Now, let's learn to use expressions practically and do exercise 11.4. Exercise 11.4, question number 1. Answer the following. Take Sarita's present age to be y years. Part 1. What will be her age 5 years from now? बच्चों, इस क्वेश्चन में सरिता की प्रेजेंट एज y ईयर्स दी गई है। 5 साल के बाद सरिता की एज क्या होगी? 5 साल के बाद सरिता की एज होगी y + 5 years. So y + 5 years is answer for the first part. Now part 2. What was her age 3 years back? आज से 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी? अभी उसकी प्रेजेंट एज है y, 3 साल पहले उसकी एज होगी y - 3. So y - 3 years. Now part 3. Sarita's grandfather is 6 times her age. What is the age of her grandfather? बच्चों, as Sarita's grandfather is 6 times her age, therefore grandfather's age will be 6 multiplied by Sarita's present age. सरिता की present age y years है, so grandfather की age होगी 6 multiplied by y, that is 6y. Now part 5. Sarita's father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age. What is her father's age? अब हमें सरिता के फादर की एज बतानी है. As Sarita's father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age, so Sarita's father's age will be, this is 3 times her age plus 5. 3y plus 5 years is the age of Sarita's father. I hope this is clear. Next करते हैं. Question number 2. The length of a rectangular hall is 4 meters less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meters? बच्चों, clearly इस क्वेश्चन में दिया गया है that length of rectangular hall is 4 meters less than 3 times the breadth. So 3 times breadth से this is 3b, b denotes the breadth. 3 times breadth से 4 meters कम है. So length is equal to 3b minus 4 and this is in meters. So यहाँ पर meters लिख देते हैं. Length is equal to 3b minus 4 meters. I hope ये भी आपको समझ में आया है. Next करते हैं. Part C. A rectangular box has height h centimeters. Its length is 5 times the height and breadth is 10 centimeters less than the height. Express the length and breadth of the box in terms of height. So बच्चों, इस क्वेश्चन में हाइट को हमें h से रिप्रेजेंट करना है. लेंथ इज 5 टाइम्स हाइट एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन हाइट. अब हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ को हाइट की टर्म्स में लिखना है. लेंथ इज इक्वल टू 5 टाइम्स हाइट, सो 5h एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर्स लेस देन द लेंथ. लेंथ वॉज 5h, इसमें से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So breadth is 5h minus 10, this much centimeters. Similarly, length is 5h centimeters. I hope ये part भी आपको समझ में आ गया. Next part करते हैं. Part D. Meena, Beena and Leena are climbing the steps to the hilltop. Meena is at step S. Beena is 8 steps ahead and Leena is 7 steps behind. Where are Beena and Meena? The total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached. Express the total number of steps using S. आइए इसको करते हैं. सबसे पहले हमसे पूछा गया है Where are Beena and Meena? सबसे पहले हमें Beena और Meena का डिस्टेंस बताना है. Clearly Meena is at step S. Meena S स्टेप पर है and Beena is 8 steps ahead. बीना मीना से 8 स्टेप्स आगे है. सो लेट अस राइट स्टेप एट विच बीना इज इक्वल्स स्टेप एट विच मीना प्लस 8. वी नो दैट स्टेप एट विच मीना इज रिप्रेजेंटेड बाई s, सो दिस इक्वल्स s प्लस 8. आई होप ये आपको समझ में आया है. हमसे बीना का स्टेप पूछा गया था. बीना's स्टेप विल बी मीना's स्टेप प्लस 8. सो दिस इज s प्लस 8. अब हमें बताना है लीना कहाँ पर है.
ये भी हमें दिया गया है, लीना इज 7 स्टेप्स बिहाइंड, मीना से 7 स्टेप्स पीछे है। आइए इसको भी लिख लेते हैं। सो स्टेप एट विच लीना इज इक्वल्स स्टेप एट विच मीना -7 एंड स्टेप एट विच मीना इज रिप्रेजेंटेड बाई एस। सो दिस इक्वल्स s -7। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग s। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमें गिवन है 10 less than 4 times what Meena has reached. So it is 10 less than 4 times Meena's steps. Meena's steps are s. So total steps will be 4 multiplied by s minus 10. आइए इसको भी लिख देते हैं। Total steps equals 4 multiplied by step at which Meena is -10. And this equals 4s minus 10. I hope ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। Part E. A bus travels at v kilometers per hour. It is going from Daspur to Bispur. After the bus has traveled 5 hours, Bispur is still 20 kilometers away. What is the distance from Daspur to Bispur? Express it by using v. So बच्चों हमें एक स्टेशन दासपुर दिया गया है और एक स्टेशन बीसपुर दिया गया है। ये डिस्टेंस हमें बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बस से 5 आवर्स चलने के बाद भी, दिस इज 5 आवर्स जर्नी, उसके बाद भी बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर्स अवे। हमें टोटल डिस्टेंस बताना है फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हमें बस की स्पीड दी गई है, इट इज़ v किलोमीटर्स पर आवर। इसको लिख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू v किलोमीटर्स पर आवर। Now we know that distance traveled equals speed multiplied by time. So the distance covered from Daspur to this point, let us write this distance. Distance is equal to speed multiplied by time. इसकी speed हमें v किलोमीटर्स पर आवर दी गई है और टाइम है 5 hours. So distance traveled in 5 hours equals 5 multiplied by v, which is 5v kilometers. So this distance is 5v. And this is 20. So total distance between Daspur and Bispur will be 5v plus 20. आइए इसको भी लिख लेते हैं। Total distance between Daspur and Bispur equals 5v plus 20 kilometers. I hope ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Change the following statements using expressions into statements in ordinary language. For example, given Salim scores R runs in a cricket match, Nalin scores R plus 15 runs. In ordinary language, we can say that Nalin scores 15 runs more than Salim. इसी तरह से बच्चों हर एक स्टेटमेंट को हमें बताना है कि उसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट ए। अ नोटबुक कॉस्ट ₹P एंड अ बुक कॉस्ट ₹3P. सो बच्चों इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। आइए इसको लिख लेते हैं। पार्ट ए, अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी। टोनी पुट्स Q मार्बल्स ऑन द टेबल, ही हैज़ 8 Q मार्बल्स इन द बॉक्स। बच्चों इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 times द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। आइए इसको भी लिख लेते हैं। पार्ट बी, टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 times द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक टेबल है जिस पर टोनी ने Q मार्बल्स रखे हैं और उसके पास जो बॉक्स है उसके अंदर 8 Q मार्बल्स हैं। मतलब बॉक्स के अंदर जो मार्बल्स हैं दे आर 8 times द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। इसी तरीके से पार्ट सी करेंगे। आवर क्लास हैज़ n स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसमें n स्टूडेंट्स हैं लेकिन स्कूल में 20 n स्टूडेंट्स हैं। इसको हमें बताना है ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कैसे कह सकते हैं। वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 times दैट ऑफ आवर क्लास। आइए इसको भी लिख लेते हैं। पार्ट सी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल इज 20 times दैट ऑफ आवर क्लास। आई होप ये भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी। आइए पार्ट डी करते हैं। जग्गू इज Z years old, हिज अंकल इज 4 Z years old एंड हिज आंट इज 4 Z minus 3 years old। बच्चों जग्गू की एज हमें दी गई है जो कि Z years है,
उसके अंकल उसकी एज का 4 टाइम्स हैं। सो इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कहेंगे जग्गूज अंकल इज़ 4 टाइम्स ओल्डर देन जग्गू। इसी तरह से जग्गू की आंट की एज 4Z-3 है। इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कहेंगे जग्गूज आंट इज़ 3 years यंगर देन हिज अंकल। क्योंकि उसके अंकल की एज 4Z थी, सो 4Z-3 इज़ आंट्स एज। आइए इसको लिखते हैं। पार्ट डी, जग्गूज अंकल इज़ 4 टाइम्स ओल्डर देन जग्गू एंड जग्गूज आंट इज़ 3 years यंगर देन हिज अंकल। क्योंकि अंकल की एज 4Z थी, उसमें से हमने 3 को लेस किया, दैट इज़ द एज ऑफ द आंट। इसी तरह से जग्गू के फादर की एज वॉज 4Z years। आइए पार्ट ई करते हैं। पार्ट ई, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देर आर रोज एंड ईच रो कंटेन 5 डॉट्स। इसको इस तरीके से समझिए, ये 5 डॉट्स हैं जो कि हर एक रो में हैं और ऐसे करते करते हमारे पास R रोज हैं। नाउ इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे दैट टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ रोज। आइए इसको लिख देते हैं। पार्ट ई, द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए, गिवन मुन्नूज एज टू बी x years। यहाँ पर हमें मुन्नू की एज x years दी गई है। कैन यू गेस व्हाट x-2 मे शो। हमें बताना है x-2 क्या शो कर सकता है। हिंट, थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर। सो x-2 का मतलब है x से 2 साल कम है। सो वी कैन से दैट मुन्नूज यंगर ब्रदर इज 2 years स्मॉलर देन और 2 years यंगर देन मुन्नूज एज। नाउ कैन यू गेस व्हाट डज x+4 मे शो। अब हमें बताना है x+4 क्या शो कर सकता है। बच्चों x+4 का मतलब है somebody who is 4 years older than मुन्नू, जो कि मुन्नू से 4 साल बड़ा है। सो हम इसको मुन्नू का बड़ा भाई कह सकते हैं। इसी तरह से what does 3x+7 represent? 3x+7 may represent a person whose age is 7 years more than 3 times मुन्नू's age. He can be मुन्नू's father. आइए इसकी सॉल्यूशन देख लीजिए। मैंने लिखा मुन्नू's age is x years, his younger brother is 2 years younger than him, जो कि उससे 2 साल छोटा है। इसको हमने x-2 से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट हमने कंसीडर किया मुन्नू का एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर इज 4 years मोर देन हिज एज। उसकी एज से 4 years बड़ा है। सो यहाँ पर मैंने लिखा x+4। x मुन्नू की एज थी, जिससे 4 साल बड़ा मुन्नू का ब्रदर है। इसी तरह से 3x+7 को हमने रिप्रेजेंट किया हिज फादर। हिज फादर इज 7 years मोर देन थ्राइस ऑफ हिज एज। उसकी एज के थ्राइस मतलब 3x और उससे 7 years बड़ा है। सो 3x+7 में रिप्रेजेंट हिज फादर्स एज। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। पार्ट बी, गिवन साराज एज टुडे टू बी y years। प्रेजेंट डे सारा की एज y years है। नाउ थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। अब हमें सोचना है फ्यूचर में उसकी एज क्या हो सकती है या पास्ट में उसकी एज क्या होगी। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट। यहाँ पर y+7 दिया गया है। प्रेजेंट एज सारा की y years है। y+7 रिप्रेजेंट करता है 7 साल के बाद सारा की क्या एज होगी। इसी तरह से y-3 रिप्रेजेंट करता है 3 साल पहले सारा की क्या एज थी। एंड y+4.5 रिप्रेजेंट करता है आफ्टर 4.5 years हर एज। इसी तरह से y-2.5 रिप्रेजेंट करता है साराज एज 2.5 years अगो। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमसे पूछा गया था थिंक ऑफ हर एज इन फ्यूचर और इन पास्ट। सो सबसे पहले फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर n years मतलब आज से n years बाद सारा की एज होगी y+n years। बच्चों यहाँ पर n एक वेरिएबल है जो कि डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। जैसे पहले केस में यहाँ पे हमने देखा था y+7, यहाँ पर n की वैल्यू 7 है। इसी तरह से दूसरे केस में हमने देखा था n की वैल्यू 4.5 है। सो दिस रिप्रेजेंट्स इन फ्यूचर। नाउ लेट अस डिस्कस इन पास्ट। इन पास्ट n years अगो, आज से n साल पहले सारा की एज वॉज y-n years। यहाँ पर भी n एक वेरिएबल है जो डिफरेंट वैल्यूज लेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था y-3 एंड y-2.5। इसी तरीके से अब इन वैल्यूज़ की सिग्निफिकेंस पूछी थी। सबसे पहले y+7 रिप्रेजेंट्स द पर्सन हुज एज इज़ y+7।
जो y सारा की एज है उससे 7 साल ज़्यादा एज को ये डिस्क्राइब कर रहा है. सो समबडी हु इज़ 7 years एल्डर देन सारा, जो सारा से 7 साल बड़ा हो. इसी तरीके से नेक्स्ट है y-3. y-3 रिप्रेजेंट्स द पर्सन हुज एज इज़ y-3 years, that is who is 3 years younger than Sarah. So 3 years younger to Sarah. Next is y plus 4.5. This represents the person whose age is y plus 4.5 years. Means who is 4.5 years elder to Sarah. जो सारा से 4.5 years बड़ा हो. इसी तरीके से नेक्स्ट है y minus 2.5. y minus 2.5 represents the person whose age is y minus 2.5 years. और we can say that who is 2.5 years younger than Sarah. आई होप ये भी आपको समझ में आया है. नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी. पार्ट सी. गिवन n स्टूडेंट्स इन अ क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट मेड 2n शो. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि n स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, एक क्लास के n बच्चे फुटबॉल को लाइक करते हैं. सो 2n क्या रिप्रेजेंट कर सकता है. बच्चों 2n में रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ईदर फुटबॉल और सम अदर गेम सच एज हॉकी. So we can say that 2n children like hockey. What may n upon 2 show? n upon 2 may represent the number of students who like hockey out of the total number of students who like football. So let us write this. Number of students who like hockey is twice the number of students liking football. Number of students who like football was given by n. So number of students who like hockey is represented by 2n. Similarly, number of students like tennis. Tennis is the game that I use to represent half the number of students, to represent n upon 2 who like football. n students liked football and n upon 2 liked tennis. I hope ये आपको समझ में आया है. हमें दिया गया था n स्टूडेंट्स फुटबॉल को लाइक करते हैं. इसी तरह से हमसे पूछा गया था 2n क्या रिप्रेजेंट करता है. 2n रिप्रेजेंट करता है जितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उससे दुगने बच्चे कोई दूसरा गेम खेलते हैं. यहाँ पर उस गेम को हमने हॉकी लिया था. इसी तरह से हमसे पूछा गया था n अपॉन 2 क्या रिप्रेजेंट करता है. n अपॉन 2 वो गेम रिप्रेजेंट करता है जिसको फुटबॉल जितने बच्चे खेलते हैं उससे आधे बच्चे खेलना पसंद करते हैं. तो यहाँ पर मैंने गेम का नाम टेनिस लिख दिया. सो फुटबॉल अगर n बच्चे खेलते हैं तो टेनिस n अपॉन 2 बच्चे खेलना पसंद करते हैं. आई होप ये भी आपको समझ में आया है. बच्चों इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में अगले वीडियो के साथ. थैंक यू ऑल.